Welcome student, class 11th, chapter set, topic Venn diagram. A new topic, Venn diagrams. In Venn diagrams, the universal set is represented by a rectangular region and subset are represented by circle or a closed geometrical figure inside the universal set. Also, an element of a set is represented by a point within the circle of set. मेन फोकस है वेन डायग्राम मीन्स किसी सेट को डायग्राम के थ्रू दिखाना. लेट अस सपोज दैट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 to 10 and other set 1 2 3 represent in the Venn diagram. First, a rectangular diagram. Rectangular diagram is a universal set. This is a set 1 2 3. Set A, element 1 2 3. 1 2 3 तो सर्कल के अंदर आ गए क्योंकि सेट ए के एलिमेंट है, बट यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग पार्ट क्या हो जा रहा है 4 5 6 7 8 9. Venn diagram means a set represented in the form of figure in which a rectangular represent a universal set, circle is represent the set and point is represent the element. Next topic, operation of set. ऑपरेशन ऑफ सेट जनरल मैथमेटिक्स में जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, उस तरह से सेट में भी कुछ ऑपरेशन है. पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ द सेट. यूनियन ऑफ सेट. फर्स्ट द डिफिनीशन, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स. द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which belongs to either A or B or both. स्टूडेंट्स, दो सेट A और B अगर हम ले लें तो यूनियन क्या होता है? यूनियन के जो एलिमेंट होते हैं वो A और B में बिलोंग करते हैं या दोनों में बिलोंग करते हैं? दोनों में बिलोंग करते हैं. स्टैंडर्ड सिंबॉलिक डिफिनीशन, A यूनियन B X such that X belongs to A or X belongs to B. Union can be represented by A union B, 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 X such that X belongs to A or X belongs to B. A union B also set A cup B. A cup B, X such that X belongs to A or X belongs to B. This is the symbolic definition. Let us example. Let a set A element 1 2 3 and B 4 5
फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। यूनियन में, यूनियन मतलब संगठन, इन दोनों को हम ज्वाइन करके यहां पे लिख दिए। ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, दोनों ज्वाइन कर लिए। वेन डायग्राम ऑफ द सेट, वेन डायग्राम, this shaded region is Venn diagram of the A union B in this example. Let another set 1 2 3 B 3 4 5 A union B 1 2 3 4 5, इन दोनों के को कंबाइन करके लिखेंगे। बट यहाँ 3 2 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स आया है, तो एक ही टाइम इसको यूज करेंगे। रिपीटिंग इज नॉट अलाउड इन द सेट, रिपीटिंग एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन द सेट। एक एलिमेंट को केवल एक बार ही यूज करेंगे। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। कुछ यूनियन ऑफ सेट्स के रूल हैं। इफ लेट अस सपोज 3 सेट्स ए बी सी, अगर 3 सेट्स सपोज कर लिया जाए, तो पहला लॉ क्या है? ए यूनियन 5, 5 मीन्स इम्पटी सेट, नल सेट equal to A is known as identity law. Second, U means universal set. Universal set union A is equal to universal set. Name universal law. Third, A union A equal to A, name idempotent law. A union B equal to B union A, commutative law. A union B union C equal to A union B union C is known as associative law. This is law of union of the set. Explanation. First, explain the first. Let us suppose a set A 1 2 3 whose element 1 2 3. 5 is the empty set, no doubt. 5 is the empty set. So A union 5, इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे, तो दिस इज द इम्पटी सेट। ये इम्पटी सेट हो गया, ये इम्पटी सेट है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? ए 1 2 3 ही मिलेंगे। ये हो गया। ए यूनियन 5 मीन्स ए यूनियन इम्पटी सेट इक्वल टू सेट ए। तो ये एग्जांपल से क्लियर हो गया। सेकंड, लेट अस 1 2 3 4 as so on 10 is universal set. Set A 1 2 3, set A 1 2 3. The union of both, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे। जब कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा? सो 10, this is the universal set. A means universal set union set A equal to universal set. Clear? Second, universal law be clear. Third,
A 1 2 3 A यूनियन A 1 2 3 दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 ही मिलेगा। तो A यूनियन A इक्वल टू 1 2 3 मीन्स सेट A। In 4, let us suppose set A whose element 1 2 3 और set B whose element 4 5। A यूनियन B दोनों के एलिमेंट कंबाइन किए तो क्या मिला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और B यूनियन A तो वो भी क्या मिलेगा 1 2 3 4 5। In both case A union B we find set element 1 2 3 4 5 और B union A element 1 2 3 4 5 both are same। This is the commutative law। Similarly इसी तरह हम associative law को भी वेरीफाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 is the law of union of the set। First name identity, second inversion, idempotent, commutative, associative। Second operation intersection law। Second operation intersection law, let A and B be any two sets, the intersection of A and B is the set of all those elements which belongs to A and B denoted by A intersection B, A intersection B, X such that X belongs to A and X belongs to B। स्टूडेंट मेन इसमें इंटरसेक्शन में क्या है, दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना होता है तो उसमें ऐसा एलिमेंट चूज करते हैं जो दोनों में कॉमन हो। मीन्स कॉमन एलिमेंट lies in A intersection B। Clear by the example, A 1 2 3 set A, set B 3 4 5। Find the A intersection B। A intersection B में हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट को देखते हैं, क्योंकि इसकी जो डिफिनीशन है उसमें जो एलिमेंट होता है ए इंटरसेक्शन बी का वो दोनों सेट में बिलोंग करना चाहिए, सेट ए में सेट बी में। तो यहां देखिए इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है, ओनली 3। मीन्स द मेंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी ओनली 3। ओनली क्या हो गया, 3 हो गया। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट को चूज करते हैं। अनदर एग्जांपल, ए कैसा भी कह सकता है कि कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले। एग्जांपल 1 2 B 3 7 1 2 3 7। Find the A intersection B। Find the A intersection B in both set, no any common element। In this case we get empty set। इस केस में हमको क्या मिलेगा, empty set। इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या लेंगे, empty set। A intersection B equal to 5 or A intersection B is equal to only braces, no any common element in the both sets। Finally A intersection B में वही एलिमेंट लेते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। कुछ बुक्स में ए इंटरसेक्शन बी को ए कैप बी भी से भी इंडिकेट किया गया, ए कैप बी, क्योंकि ये कैप शेप का होता है। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट एज लाइक लॉ ऑफ यूनियन ऑफ द सेट। फर्स्ट, बस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट,
वहां पे यूनियन का सिंबल यूज किया गया था, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज किया गया। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ, यूनिवर्सल लॉ, इडुपोडेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो ए में तो कुछ एलिमेंट है इम्पट, और बी में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे इम्पटी सेट मिला। इन यूनिवर्सल और सेट ए का जब कॉमन लेंगे तो छोटा वाला एलिमेंट होगा, यदि सेट ए मिलेगा, उसमें वहां पे क्या मिलता था, वहां पे ए मिलता था, यहाँ पे 5 मिलता था। ये सेम जिस तरह हम उस यूनियन वाले लॉ को वेरीफाई किए, उसी तरह इंटरसेक्शन लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं।